हेलो फ्रेंड्स, मैं तौहीद अंसारी ATS चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं समूह लगन में, जो कि कुरैशी समाज का समूह लगन है। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, तो आइए देखते हैं कि क्या है और कैसे है। तो चलते हैं अंदर अभी। अब मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब नदवी दामत बरकातुहुम को इस शहर के पेश नज़र के टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, कारवां के लिए बस मुक्तदा चाहिए। दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत हमारी इस तकरीब की सदारत को कबूल फरमावे, इन अशआर के साथ कबूल फरमावे। चमन के हर शिगफ्ता फूल से जैसे प्यार है सबको, चमन के हर शगुफ्ता फूल से जैसे प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। तो आइए इन्हीं नेक इरादों के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बारगाह खुदावंदी में दुआ करते हैं कि आज के दिन के ये खुशनसीब जोड़े अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनके दरमियान, इनके ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत, मवद्दत, रहमत और सुकून अता फरमावे। महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया के तमाम मज़ाहिब का दस्तूर है कि वो अपने प्रोग्राम और जलसों का आगाज़ अपनी मजहबी किताब से करते हैं। कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है और हमारा ये अक़ीदा है कि जिस काम की इब्तिदा में खुदा का नाम लिया जाए तो वो काम बहुस्न खूबी अंजाम पाता है, और अगर खुदा का नाम न लिया जाए तो वो बड़ी तशवीश का शिकार रहता है। तो आइए कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं मौलाना मोहम्मद खालिद साहब पटनी को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है, मिटाना इसको दुनिया से कोई आसान थोड़ी है। सुनो यारो, किसी इंसान का फरमान थोड़ी है। किताबें आज भी दुनिया में है बेइंतहा मौजूद, किताबें आज भी दुनिया में है बेइंतहा मौजूद, मगर कुरान से आला किसी की शान थोड़ी है। मौलाना मोहम्मद खालिद पटनी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله
الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. جیسا بھلا آیا کہاں لوگوں ذبیح اللہ اسماعیل کے عالین سب سے ہے وہی مشہور صادق اور امی جیسے لقب سے تھے گھرانوں میں گھرانہ ان کا دنیا بھر میں اعلیٰ ہے جس کے پاس دل ان سے محبت کرنے والا ہے. بنو ہاشم کی قسمت کے ستارے جگمگا اٹھے عبد المطلب خادم بنے ہیں کعبۃ اللہ کے. یہودی عالموں نے ان کو خوشخبری سنائی تھی نبوت کی گواہی بھی بہت سے راہبوں نے دی. خدائے لم یزل ان کو زمزم سے نوازا تھا اور اس پر ان کا ایک بیٹے ایک قربانی کا وعدہ تھا جو قربانی کا قرآن نکلا عبداللہ کا نام آیا قریشی خاندانوں کا وہاں پر دل تڑپ اٹھا. دیا یہ مشورہ خیبر کے عرفان شیبہ کو کہ تم اونٹوں کی صورت اس جوا کا خوب باندھ دو. تو اس دن بعد یہ مکہ کے ہر گھر میں خوشی پھیلی. گلے مل کر وہب نے ان کی پیشانی بھی پھر چومی. وہب مکہ کے ایک کنبے بنی زہرا کے والی تھے. عبداللہ کی شادی طے ہوئی پھر ان کی بیٹی سے. سب حسنین مجسم کا بڑا اعزاز کرتے تھے. عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. بلا کا حسن تھا اور نور چہرے پر حیا ان کے. یشیدہ تھے عرب کے بوڑھ بچے اور جواں ان کے. حسیمہ تھے بے ایک نور نبوت جگمگاتا تھا. قیامت تک کی خیر و برکتوں کا اس سے ناتا تھا. عرب کی عورتیں اس نور کی طالب رہی کتنی پر اس سے آمنہ بی بی کی قسمت خوب در چمکی. تجارت کے غرض سے چل دیے. اس کے بعد جناب عارف بھائی گھاسورا کا استقبال جناب عبدالرشید بھائی سیدپور کا. حضرت مولانا محی الدین صاحب سیدپور والے ان کا استقبال کریں گے جناب رفیق بھائی مہسانہ. محترم حضرات، ہمارے اس آج کے اجتماعی نکاح اور سموہ لگن میں جن حضرات نے مالی تعاون کیا ہے ان کی ترتیب یہ ہے کہ پاٹن قریشی سماج کی طرف سے 25,000 روپے، مہسانہ قریشی سماج کی طرف سے 15,000 روپے، پالنپور جماعت کی طرف سے دعوت کا پورا خرچ، سیدپور قریشی جماعت کی طرف سے قرآن شریف کے پیٹی 11 ننگ، مسلح، تسبیح، ٹوپی 11 ننگ، دلہا اور دلہنوں کے کپڑے 11 جوڑی، سونے کی 11 ننگ سونے کی کانٹی یونس بھائی جدہ والوں کی طرف سے،
11 नंग बुरखे हाजी इब्राहिम भाई कुरैशी और हाजी हाफिज जावेद भाई कुरैशी की तरफ से, 11 नंग नॉन स्टिक तवा यंग कमेटी राधनपुरी वास की तरफ से, 11 नंग सुटकेस बैग हाफिज उसामा की तरफ से, 11 नंग बाथरूम सेट मौलाना उमर साहब मरहूम मौलाना अहमद साहब के लड़के की तरफ से, 11 नंग ब्लैंकेट वाबी मोहम्मद भाई काला भाई पालनपुर वालों की तरफ से, 11 नंग दीवार घड़ी जनाब रफीक भाई आरके की तरफ से महसाणा वाले, 11 नंग इलेक्ट्रिक इस्त्री उमर भाई महसाणा की तरफ से, एक मोटी किटली और 11 नंग रोटी के डिब्बे यूसुफ भाई महसाणा की तरफ से, 11 नंग स्टील के थाल अल्लाह रखा भाई महसाणा की तरफ से, टिफिन कवर के साथ आरिफ भाई महसाणा की तरफ से, फुल साइज के कूलर 11 नंग बबन भाई महसाणा की तरफ से, स्टील के बाउल सेट असलम भाई महसाणा की तरफ से, प्लास्टिक की चटाई 11 नंग फ़कीर मोहम्मद भाई महसाणा की तरफ से, प्लास्टिक के डब्बों का सेट मुस्तकीम भाई महसाणा की तरफ से, जग ग्लास सेट कांच के जग और ग्लास का सेट गुलाम नबी भाई महसाणा की तरफ से, स्टील का बड़ा तस 11 नंग शाहिद भाई महसाणा की तरफ से, स्टील की बड़ी थाली 11 नंग अल्ताफ भाई महसाणा की तरफ से, 11 नंग डिनर सेट जहूर भाई सूरत वालों की तरफ से, पानी के 11 नंग कूलर जहूर भाई सूरत वालों की तरफ से, पानी के जग ग्लास सेट जहूर भाई सूरत वालों की तरफ से, मरहूम हाजी इकबाल भाई अहमदाबाद वालों की तरफ से 26 सूरतें, याकूब भाई अनवर भाई महसाणा की तरफ से छोटे तस 11 नंग। फजज़ाहुमुल्लाहु अहसनल जज़ाई फिद दारैन, अल्लाह इनके जान में माल में इज़्ज़त में आबरू में खूब बरकत अता फरमावे। मोहतरम अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम एक मुक़द्दस और पाकीज़ा मज़हब है। मज़हब इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है। निकाह सिर्फ शरई फरीज़ा ही नहीं बल्कि मुआशरे और सोसाइटी को मजबूत बनाने में इसकी बड़ी अहमियत है। निकाह अंबिया की सुन्नत है और मज़हब इस्लाम ने निकाह को इबादत का दर्जा दिया है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिस्कीन है वो जिसकी बीवी न हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अगरचे वो मालदार हो तब भी वो मिस्कीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अगरचे बहुत माल वाला हो। फिर फरमाया, मिस्कीन है वो औरत जिसका शौहर न हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अगरचे बहुत मालदार हो फिर भी मिस्कीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अगरचे बहुत मालदार हो। निकाह का मकसद तक़वा, परहेज़गारी, पाकदामनी, निगाह और शर्मगाह की इफ़्फ़त और पाकीज़गी और औलाद का तलब करना है। इंसानी नस्ल का बका भी इसी से मुमकिन है। इस मकसद को हासिल करने की बड़ी ताकीद आई है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और नरमी रख दी। हदीस पाक में है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमारा माशरा बुरे रिवाजों से भरा पड़ा है। फजूल खर्चियों ने हमारी हर तकरीबात और फंक्शन को गुनाहों से भर दिया है। हर फंक्शन और हर प्रोग्राम में हम में का हर इंसान कर्ज के पहाड़ तले दब जाता है, कर्ज के लिए गलत तरीका अपनाता है और सूद जैसी मनहूस लानत का मुस्तहिक होता है और ज़िंदगी रंज व गम से भर जाती है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। आज हम इससे हटे तो अल्लाह की मदद हमसे दूर हो गई और हमारी ज़िंदगियां परेशानियों और मुश्किलों से भर गई है। और फिर हम इस तरह की बातें करते फिरते हैं कि जादू कर दिया है, कुछ पिला दिया है, कुछ खिला दिया है,
हकीकत ये है कि ज़िंदगी की तकरीबात को अगर सुन्नत के मुताबिक अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह सुकून, राहत और इत्मीनान वाली ज़िंदगियाँ नसीब होगी, और अगर इससे हटेंगे तो फिर परेशानियाँ और मुश्किलात का सामना करना होगा। एक शायर रस्म व रिवाज के मुताल्लिक यूँ कहते हैं, आप किस सिमत निकलेंगे बचा के दामन, आप किस सिमत निकलेंगे बचा के दामन, रस्म व रिवाज राह में मिलते हैं फ़कीरों की तरह। आज के इस इज्तिमाई निकाह में हमें यह अहद करना है कि इंशाअल्लाह शादी को आसान करेंगे और रस्म व रिवाज से दूर रहकर सादगी को फ़रोग़ और बढ़ावा दिया जाएगा। आज के ये समूह लगन का प्रोग्राम मुआशरे और समाज की बुराइयों के ख़िलाफ़ बेहतरीन कदम है। हमें अपने आने वाले नस्लों को भी ये पैगाम देना है कि निकाह का असल मकसद बरकत, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के साथ एक खूबसूरत रिश्ते को परवान चढ़ाना है, न कि दिखलावा और नुमाइश करके अपने आप की मुश्किलों को बढ़ाना। जिसकी मौजूदगी से सब लोगों में हौसला व हिम्मत और काम करने का जज्बा पैदा होता है। अब इसके बाद हमारे एक मेहमान जनाब आरिफ भाई घासूरा, जो कि एक मारूफ और फ़आल शख्सियत है, जो मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमात के हवाले से मशहूर है। आप ज़करिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जहां मरीज़ों को आला मेयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती है। अस्पताल की कामयाबी में आपका नुमाया किरदार रहा है और आपकी क़यादत में अस्पताल अब आगे के 50 साल 60 साल पता नहीं कितने साल आप साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, तो ये जिंदगी मोहब्बतों भरी कैसे बने। इसके लिए जो है मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे हजरत आ चुके हैं माशाल्लाह, दोनों हजरत बैठे हुए, इनसे भी फायदा उठाना है। तो ये जिंदगी हमारी कैसे अच्छी बने, इसके लिए जो है हमारे आप बहुत सारे हजरत, खुसूसन मैं अर्ज कर दो, हजरत जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जो है इस पर मुस्तकिल बयानात किए हैं, इस पर मुस्तकिल खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी पर उनकी किताबें हैं, और अकाबिर उलमा ने इन पर जो है अपने जो है तसनीफें लिखी है। तो उनको पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, और इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। इज्तिमाई निकाह जहाँ हो रहे हैं, अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम बने जहाँ इस निकाह से पहले इन जोड़ों को मुस्तकिल इसकी तालीम देने का भी निज़ाम कायम किया जाए। तो मैं आपसे जो इस इज्तिमाई निकाह के मुंतज़िमीन हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा आप इसकी भी कोशिश करें कि ये जो जोड़ों की ताबीर करते हैं, उनकी तरक्की दुनियावी एतबार से बहुत बड़ी है। और उसका रीजन ये है कि उन्होंने वो इस्लामी तौर तरीक़ को इख्तियार कर लिए लाइफस्टाइल के एतबार से, चाहे उनके अंदर में हजार बुराइयां होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें उन्होंने अपना ली है जो हमारे पास में नहीं, जो हमारी थी तब दिखा रहे हैं। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसको देखना चाहती हैं, और मजमा ज्यादा था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को एक ऊंची जगह पर खड़ा कर दिया, और हजरत आयशा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के कंधे मुबारक पर अपनी थोड़ी को रखकर गोया के आड़ कर दी, और वहां खड़ी रहकर जो है उस करतब को देख रही है, और उस जो ट्रिक्स बताई जा रही है उसको देख रही है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर थोड़ी रख अपनी दाढ़ी रखकर जो है वहां पर खड़ी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को दिखा रहे हैं तमाशा, वो करतब हो रहे हैं, अल्लाह के हबीब दिखा रहे हैं। कभी आप दोनों जा रहे हैं ऐसे रास्ते पर जिसमें तन्हाई है, मजमा नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कहा, आयशा आओ दौड़ लगाते हैं, आयशा आओ दौड़ लगाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दो जहां के सरदार है, इमामुल अंबिया